Hello student, I am Dr. S. Kandare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. The title of our presentation is Vector PBR 322. So this is the vector we are going to learn, PBR 322. This is an important vector in rDNA technology. So content, what is vector? Features of plasmid vector PBR 322, applications of the vector PBR 322, advantages of vector PBR 322. So this is the content of our presentation. So let us first of all see what is vector. Vector is defined as any DNA molecule, that is plasmids, cosmids, lambda phages, used as a vehicle to artificially carry a foreign DNA into another cell where it can be replicated and or expressed. So this is the definition of a vector. So therefore you have to understand here what is a vector. So vector is nothing but a DNA molecule such as plasmid, cosmids, lambda phages, etc. And it is used as a vehicle or carrier for the gene of interest. And this carrier carries the DNA molecule into the cell where it can be amplified, that is replicated, where we can make a number of copies of the gene of interest, or that gene of interest can be expressed. So therefore this is the vector. So यहाँ पर ये वेक्टर जो होता है एक कैरियर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, इस बात को आप ध्यान में रखना चाहिए. सो विच इज़ एन आइडियल वेक्टर. अभी हम देखते हैं कि अच्छा वेक्टर किसे कहा जाएगा. विच इज़ एन आइडियल वेक्टर. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल प्लाज्मिड वेक्टर्स. Number 1, size. Plasmid must be small in size. It should be less than or equal to 10 kilobase. The small size is essential for easy introduction into the cell by transformation, transduction and electroporation. So therefore size of the vector counts here, isn't it? So this is the significant factor of an ideal वेक्टर. उसका साइज छोटा होना चाहिए. सो व्हेन द साइज इज स्मॉल, isn't it, up to 10 kb, so this vector can be manageable. तो उसका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. ये एक चीज़ हो गई. उसके बाद में origin of replication, isn't it, it must have its origin of replication and regulatory genes for self replication. तो वेक्टर के अंदर ओरी साइट होता है, ORI, origin of replication site. So this site and this the genes present on this site help in the self replication of the vector. Then unique restriction sites. It must have unique restriction sites to use common restriction enzymes. तो rDNA टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ restriction enzymes होते हैं, and these enzymes acts as biological scissors, and these enzymes cut the DNA molecule at specific site. तो ये वेक्टर के अंदर जो कि प्लाज्मिड भी हो सकता है, उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट्स होना ज़रूरी है, जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, एंड एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट वी कैन इंसर्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो इस प्रकार से यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट भी वेक्टर के अंदर होनी चाहिए. देन मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स. इट मस्ट हैव MCS, that is multiple cloning sites, to insert a gene of interest and recirculation of the plasmid. तो ये जो होता है रेस्ट्रिक्शन साइट अगर ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट कहते हैं उसको, तो वो अगर एक से ज़्यादा अगर रेस्ट्रिक्शन साइट उसके अंदर होते हैं टू कट द प्लाज्मिड और दैट वेक्टर, तो वो ज़्यादा काम की चीज़ है. सो देयरफॉर
the vector which is having multiple cloning sites plays a vital role, और वो जो वेक्टर होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ज़्यादा काम की चीज़ होती हैं. Insertional inactivation, it must have unique sites for restriction enzymes in marker genes to cut the marker gene and insert the desired gene so as to inactivate the marker gene. This helps to identify the transformed plasmid vector. तो यहाँ पर एक साइट ऐसी होती है वो वेक्टर के अंदर, वो प्लाज्मिड के अंदर, तो जहाँ पर उसका वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है, तो वहाँ पर अगर उसका क्लोनिंग साइट अगर है तो वहाँ पर कट करने के बाद दैट जीन बिकम्स इनएक्टिव. तो वो जब इनएक्टिव हो जाता है तो हमें उसको आइडेंटिफाई करने में मदद होती है, तो उसको कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. अगर ये साइट वो वेक्टर के अंदर होती है तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत यूज़फुल बात है. सिलेक्टेबल मार्कर जीन ये भी होनी चाहिए. सिलेक्टेबल मार्कर जीन भी वेक्टर के अंदर होना चाहिए. वेक्टर मॉलिक्यूल्स शुड हैव सम डिटेक्टेबल जीन्स that express certain products in the medium for distinct notification of the inserted gene of interest. These traits enable the transformed cells to be identified among the non-transformed one. तो जो बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने में ये सिलेक्टेबल मार्कर काम आता है. जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, तो these are the selectable marker, and these sites or these genes when they are present in the vector they are useful to select recombinant plasmids or vectors. तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है उसको सेलेक्ट करने में these selectable markers मदद करते हैं. So therefore selectable marker should be there which contribute for the ideal vector. So these are the some important features to make the plasmid vector ideal. Okay, तो ये कुछ बातें हैं, इसके अंदर आप और कुछ ऐड कर सकते हैं, बट these are the important things that I have enlisted here. उसके बाद में फीचर्स ऑफ प्लाज्मिड PBr322. तो ये जो प्लाज्मिड है इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है. अब ये जो वेक्टर के तौर पे काम करता है प्लाज्मिड, जिसका नाम है PBr322. सो हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज PBr322. सो हियर यू कैन सी दिस P, ये जो P है, दिस P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड. ओके, तो ये पहली बात है. देन उसके बाद में ये जो B है, सो B स्टैंड्स फॉर बॉलीवर, isn't it? So this Bolivar is the name of a scientist who has constructed this plasmid. R stands for ये जो R है यहाँ पे, this R stands for Rodriguez. This is another scientist, that is the name of constructor scientist. तो ये दो साइंटिस्ट ने मिल करके ये प्लाज्मिड बनाया है, इसलिए इसको ये B and R यहाँ पे लगाया गया है. So P for plasmid, B for Bolivar and R for Rodriguez. So इस प्रकार से ये PBr होता है. एंड दिस 322 इज अ नंबर, असाइंड नंबर इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरी के अंदर ऐसे बहुत सारे प्लाज्मिड्स है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए दिस 322 नंबर इज असाइंड टू दिस प्लाज्मिड. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व इन द नेम ऑफ दिस वेक्टर. It is constructed in 1977 in the lab of Herbert Boyer at the University of California in San Francisco. तो यहाँ पर ये प्लाज्मिड बनाया गया है ये साइंटिस्ट के माध्यम से. PBr322 यहाँ पर वो कंस्ट्रक्ट किया गया है. इट इज़ अ फर्स्ट सिंथेटिक प्लाज्मिड, isn't it? जैसा हमारा RDNA टेक्नोलॉजी का स्टडी बढ़ते गया तो उसमें हमने सिंथेटिक प्लाज्मिड बनाना शुरू किया. सो देयरफॉर दिस प्लाज्मिड PBr322 इज द फर्स्ट सिंथेटिक प्लाज्मिड. इट इज़ 4362 बेस पेयर लॉन्ग. तो इसका जो लेंथ है, इसका DNA जो है
इसकी लेंथ क्या है 4362 बेस पेयर लॉन्ग, इतना इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड बेसिस है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एस्चेरिशिया कोली प्लाज्मिड। तो ये बनाने में ये जो प्लाज्मिड बना है PBr322, तो उसके लिए बेस क्या यूज़ किया गया, तो एस्चेरिशिया कोली नाम की जो बैक्टीरिया होती है, इट इज़ ए कॉमन बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो दैट bacteria and its plasmid is used as the base and foundation for the construction of this PBr322। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपको याद रखनी है कि एस्चेरिशिया कोली या ई कोलाई, इसका जो प्लाज्मिड है वो बेस के तौर पे यूज़ किया और उसको मॉडिफाई करके ये जो प्लाज्मिड है ई कोलाई का, उसको मॉडिफाई करके ये PBr322 बनाया गया है। सो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। It has about 40 endonuclease restriction sites, 11 in tetracycline, 9 in ampicillin region and rest are elsewhere। तो इसके अंदर तकरीबन 40 एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। तो यहाँ 40 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की माध्यम से हम ये प्लाज्मिड को 40 जगह कट कर सकते हैं और वहाँ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, देखिए इज़न्ट इट, क्योंकि ये जो वेक्टर होता है, ये जो वेक्टर है उसके अंदर कटिंग साइट होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा नंबर है ये, 40 एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो उसमें से 11 जो है टेट्रासाइक्लिन का जो जीन है वहाँ पर है उसके वो रीजन में, और 9 जो साइट है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन साइट पे हैं। So in this way you will find that it has a good number of restriction sites. 2 antibiotics markers, ampicillin and tetracycline resistant. So it has 2 antibiotic markers. तो ये मार्कर होनी चाहिए मार्क करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। So ampicillin resistant gene and tetracycline resistant gene that are present in this PBr322 and these genes acts as markers। तो ये मार्कर के तौर पे काम करते हैं। तो हमें जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हम इंसर्ट करते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने में ये मार्कर्स काम आते हैं। इट कुड बी इट कुड क्लोन DNA अप टू 15 KB लेंथ ऑफ DNA सेगमेंट। तो इतना बड़ा साइज का DNA, 15 KB का DNA, इसका क्लोनिंग ये PBr322 कर सकता है। So this is the capacity of this plasmid vector that can clone a DNA of interest of this length. So this is another feature. Its copy number is 20 to 30 per cell। तो इसका जो कॉपी नंबर होता है पर सेल तो इतना है, तो अच्छा कॉपी नंबर है। तो जब इसका रेप्लिकेशन होता है तो इसका जो कॉपी नंबर है ये इतना है, 20 से 30 हर सेल के अंदर। तो इस प्रकार के ये जो प्लाज्मिड है PBr322, इसके कुछ ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स है। देन ये जो प्लाज्मिड है इसके ऊपर कौन कौन से साइट है, जैसा मैंने बताया कि AMPR, तो इसका मतलब होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट। AMP स्टैंड्स फॉर एम्पिसिलिन एंड R फॉर रेजिस्टेंट साइट। तो AMPR this is one of the site which is present on the plasmid PBr322. Then TET-R, that is tetracycline resistant site, ये भी होती हैं। Then BAM-H1, that is Bacillus amaloliquefaciens H1 strain। So this site is there, that is the restriction site। तो ये जो है ये Bacillus amaloliquefaciens, यहाँ से जो हमने एंजाइम प्राप्त किया है, ये एंजाइम ये कट करने की उसकी एक साइट होती है, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम Bacillus amaloliquefaciens। SAL1, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस अल्बस। सो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन साइट है। देन PVU2, Proteus vulgaricus, this is another site। PST1, Providencia stuarti, isn't it? तो ये बैक्टीरिया के अंदर से जो हमने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्राप्त किया है उसको कट करने की
ये साइट है। देन काल1 दैट इज़ क्लस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटेलिकम, ये भी बैक्टीरिया का नाम है। तो इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने डिराइव किया है, वो उसको कट करने के लिए, वो भी एक साइट है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है इसके अंदर। एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यूज्ड एज इंसर्शन साइट फॉर डिजायर्ड जीन एंड मार्कर साइट। तो ये मार्कर साइट है, ये मार्क करता है। एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स आर यूज्ड एज insertion site as well as marker site. Okay, so these are the important sites. Then EcoR1 Escherichia coli, ये भी एक restriction site है। ROP that is regulator of copy number in the host, ये भी एक उसके ऊपर एक site है। So you can see there are about 11 important sites that are present on the vector PBR322. So here you can see different sites are given here। जैसे कि हमने यहाँ देखा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है, ये वाला एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट, और उसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं, isn't it? जैसे कि ये PVU1, isn't it? तो ये है यहाँ पे, ये प्रोटियस वल्गैरिकस, इससे जो एंजाइम हमने प्राप्त किया वो यहाँ पे कट कर सकता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स है यहाँ पे, PST1 वगैरह। यहाँ पे देखिए प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी, ये यहाँ पे कट लगाएगा। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के अंदर बहुत सारे साइट्स है, बट यहाँ पर मैंने 2 बताए हैं, isn't it? सो दिस इज़ द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, इसके अंदर ये साइट बताया BAMH1, isn't it? बहुत सारे हैं, लेकिन फॉर आवर कन्वीनियंस वी हैव शोन few of them। SAL1, isn't it? So these are the restriction sites। So here you can see this SAL1 means Streptomyces albus, ये बैक्टीरिया के अंदर से हमने जो restriction enzyme प्राप्त किया है वो यहाँ पे कट कर सकता है। So it is a restriction site कहते हैं उसको। restriction enzyme can cut here which is obtained from this particular bacteria Streptomyces albus। ये BAMH1 जो है, तो उसका यहाँ पे लिखा है नाम Bacillus ameloleukophaciens strain H1। So the restriction enzyme obtained from this Bacillus ameloleukophaciens bacteria can cut here। यहाँ पे ये restriction site, ये कट कर सकता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ये साइट है, और उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। ये यहाँ पे अनदर रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, HIN2, काल1, है कि नहीं, EcoR1, isn't it? So all the full forms I have given here, you can see here, isn't it? ये EcoR1 का है। तो EcoR1 का मतलब होता है Escherichia coli restriction enzyme 1, isn't it? और यहाँ पे ये ROP साइट है। तो रेगुलेट, ये क्या है, ROP साइट जो होता है, सो दिस ROP साइट रेगुलेट्स द कॉपी नंबर इन द होस्ट सेल, isn't it? एक स्पेसिफिक जैसा कॉपी नंबर हमने देखा कि 20 से लेकर के 30 तक इसका कॉपी नंबर मेंटेन करता है ये साइट, और उस पर ही ये PVU2 यहाँ पे लिखा है, प्रोटियस वल्गैरिकस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है। देखिए यहाँ पे रॉप के ऊपर ही है ये, isn't it? ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से रेप्लिकेशन का ओरिजिन होता है। सो दिस इज़ द जेनेटिक मैप ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर PBR322, and this is called E. coli cloning vector PBR322 because it is originally obtained from Escherichia coli and it is modified by this Bolivar and Rodriguez। So therefore E. coli का ही प्लाज्मिड है, उसको मॉडिफाई किया गया है, and this is the first artificial vector, isn't it? PBR322। So these are the features and this is the figure of दिस PBR322। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन सेट है, यहाँ कट कर सकते हैं हम, यहाँ कट कर सकते हैं, यहाँ कट कर सकते हैं, एज पर आवर नीड। एंड जहाँ भी हम कट करेंगे, isn't it? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कट लगा दिया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, यू कैन इंसर्ट दिस DNA molecule here, isn't it? The gene of interest can be inserted here, yeah, here,
आप यहाँ भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो एज पर द नीड यू कैन कट दिस वेक्टर and insert the gene of interest for cloning purposes. Okay, so these are the features of plasmid PBR322. So what are the advantages of plasmid PBR322? Due to its manageable size, जैसा कि मैंने बताया इसका साइज मैनेजेबल है, छोटा है, isn't it? Due to its manageable size, plasmid PBR322 is widely used as a cloning vector in rDNA technology. तो ये बहुत फेमस है क्योंकि ये छोटा भी है, इसका साइज मैनेज होता है, एंड फॉर दैट पर्पज दिस प्लाज्मिड इज यूज्ड वाइडली इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी. द प्रेजेंस ऑफ 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स इज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स. तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो साइट है, ये सिलेक्शन के लिए हमारा जो इंसर्टेड और जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर और किस प्लाज्मिड ने वो लिया है डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको सेलेक्ट करने के लिए ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो जीन है वो फंक्शन करते हैं, और उसका ये इम्पोर्टेंट फीचर है. देन मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स मेक द प्लाज्मिड कॉम्पैटिबल इन मेनी वेज. सो इट हैज़ मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट, तो उसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा प्लाज्मिड के तौर पे काम करता है PBR322. तो दिस इज़ वन ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट एडवांटेज. It has high copy number which is highly favorable in genetic engineering. तो इसका कॉपी नंबर भी सफिशिएंट है, isn't it? 20 to 30 per cell इसका कॉपी नंबर होता है. So these are the few advantages of PBR322, isn't it? You can add more. So in this way, this is about PBR322, that is the plasmid vector which is used in gene cloning. So I recommend you that view this presentation repeatedly and prepare your own notes. Okay. So thank you friends. Thank you very much.